Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہدس آلس تامت. پتم کیا دروس وات اسہ آیت الکرسی ہند مطالعہ کرن اور رب ذوالجلال سن فضل و احسان ست کرے اس پتمس درسس مز تمچ تشریح مکمل. ام برو کہ آز کن آیاتن متعلق یہ کت کرنے اخ ز علمی نقطہ چھس بہ یژھان تہ ست شیئر کرن امی آیت الکرسی کے حوالہ. بہرحال یم پارک آغاز گیو تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کہ یہ جو رسولوں کا تذکرہ قرآن میں ہے یا جو انبیاء جملہ انبیاء ہیں بہرحال ان کے فضائل میں تفاوت ہے، یعنی ساری انبیاء علیہ السلام ان کے درجے ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ یہ درجات مز تفاوت. اور پھر مثال کے طور پر یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخشا تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار معجزات عطا کیے تھے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے ان کے لیے کسی خاص وصف کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف اشارتاً کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا تھا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس ولو تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسولوں کے درجات کو بہرحال الگ الگ اور جدا جدا رکھا ہے. اور امپت آئے یمن مطلب ون کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہا گیا، لیکن پھر کہا گیا ان کے بارے میں کہ فضلنا بعضهم علی بعض ورفع بعضهم درجات، کچھ کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند کیا. وہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال ام آیت تال علماء کرام اخ نقطہ اخ کوڑمت وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا مز اخ فرقہ اخ اسے کہتے ہیں فرقہ پرویزیہ. یہ خاص طور پر پاکستان مز یہ اصل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا پرویز، تو اسی نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی تھی تو اس لیے اس فرقے کا نام پڑ گیا فرقہ پرویزیہ. یہ فرقہ پرویزیہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک ایسا فرقہ ہے، ان کو اہل القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی یہ صرف قرآن کو دلیل مانتے ہیں اور حدیث کو یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی انبیاء علیہ السلام ہیں تو اسی طرح جناب محمد رسول اللہ بھی ان میں سے ایک نبی تھے. بہرحال اس آیت نے اور یہ آیتن کو تمیک بالکل اس کی وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص
यहाँ कोई आम नबियों की तरह नबी नहीं है, बल्कि सबसे बुलंद दर्जात जिन नबियों में से है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इस आयत से उलमा ने मसला निकाला है कि दर्जातों में सारे खुद थदिस दर्जस पे रसूलों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि इस आयत ने उसकी तशरीह कर दी और उसका इशारा दे दिया। दमिस नंबरस पे युस जन अंबिया मज दर्जे वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तिकाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो युस जन आयतुल कुर्सी हिंदिस तशरीह मज आव कि कयामत के रोज सभी अंबिया मेरे झंडे तले जमा हो जाएंगे। इससे पता चला कि सबसे ज्यादा बुलंद दर्जा किनका होगा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और शिफात कुबरा युजन उनका भी हक किनको होगा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और महराज के मौके में हम पढ़ चुके हैं और हम सुन भी चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की वहां पर इमामत कराई थी। इमामत कराना इस बात की अलामत थी कि तमाम अंबिया के जो इमाम हैं, जिन्हें हम इमामुल अंबिया कहते हैं, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसलिए ये गए जहनस मज अकिस मुसलमानस आसुन कि तमाम नबियन हिंद दर्जात यम छिन ही के, और दर्जात में से सबसे ऊंचे दर्जे के कौन नबी है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस में आमद, ये हदीस हमने पिछले दरूस में भी पढ़ी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर मूसा आज जिंदा होते उनको भी मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चारा कार नहीं था, यानी उनको भी किसकी इत्तिबा करनी होगी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि वो दोबारा लौट कर आएंगे, मगर बहैसियत उम्मती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमेशा उम्मती का दर्जा रसूल के बराबर नहीं होता है, अगर वो कितना भी बुजुर्ग हो। तो इससे भी पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हजरत ईसा से भी बढ़कर है। वो याद थो तमाम अंबिया में दर्ज सारे को थोद कौन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरे नंबर पर, और ये इसलिए मैं बताता हूँ कि गाइस मुसलमान हिंद अकीदस में ये बात शामिल, दूसरे नंबर पर जो सबसे खास अंबिया में से हैं और सबसे दर्जात में बुलंद, वो है जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसकी दलील कुरान से भी है और इसकी दलील अहादीस से भी है। कुरान में कहा गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्मन कहा गया कि आप वत्तबी मिल्लत इब्राहीम, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की और मिल्लत की इत्तिबा कीजिए। तो इससे पता चलता है कि दर्जात में अगर मूसा दूसरे नंबर पर होते तो रसूलुल्लाह को किन की इत्तिबा करने का कहा जाता, मूसा का या ईसा का या किसी और नबी का। इस आयत से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि दूसरे नंबर में जो नबियों में से दर्जात पर है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। अच्छा, इस आयत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहूद, नसारा और मुसलमान जो उस वक्त तीन फिरके मौजूद थे, वो तीनों हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत के कायल थे। ये सारी मानन अमिस इमाम। और दरूद इब्राहिम में भी हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ए अल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे ही दरूद भेज, ऐसे ही सलामती भेज जिस तरह आपने किन पर सलामती भेजी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। तो इससे भी पता चलता है कि दर्जात में दूसरे नंबर के नबी कौन है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, इस आयत में इसमें वारुन ये वो ये है, यहाँ अल्लाह ने फरमाया तिलका रसूल फज़लना बाज़ुम अला बाज़, कि हमने रसूलों को दर्जात में तफावुत दिया है। फिर किनका जिक्र किया गया, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ क्या किया, करा। इशारा किन की तरफ है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो उलमा ने इस्तेदलाल किया है तीसरे नंबर के जो नबी है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद वो कौन है, हजरत मूसा, क्योंकि इनका जिक्र पहले आया है। और एम्पतावन व आतैना ईसा इब्न मरियम बय्यिनात, हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह निशानियां दी। तो मूसा से बढ़कर, बल्कि मूसा से नीचे कौन है फिर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये अकीदे की बात है, मुसलमान का इस अकीदस में आसुन कि तमाम नबी बरहक हैं, वो अपने अपने नबी के अपने अपने वक्त के बरगुज़ीदा बंदे थे। अलबत्ता इनमें भी तफावत है, सबसे ऊंचे हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उनसे दर्जे में थोड़ा सा नीचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर हजरत मूसा और फिर हजरत ईसा। ये ऑर्डर था मुसलमान लाजमी, ये उसके अकीदे का जुज है। बाकी अंबिया जो है
उनमें अगर तफावत दर्जात में होगा उसमें कोई कुबाहत नहीं है। यानी कोई कहे कि इसके बाद हजरत आदम है या हजरत नूह है या हजरत यूसुफ है या कोई और, उनमें कोई कुबाहत बहरहाल उनकी दलील कोई कुरान से है नहीं। अलबत्ता इनके बारे में ये अकीदा होना चाहिए मुसलमान का कि हजरत मूसा हजरत ईसा से बढ़कर पैगंबर थे। इसी तरह हजरत इब्राहिम उनके दर्जात बड़े हैं किन से? हजरत मूसा और हजरत ईसा से। आकर दूसरी बात, आयतुल कुर्सी के बारे में हमने पढ़ा कि अहादीस में इसकी बड़ी फजीलत आई है कि नमाज पढ़ते गसी पढ़ुन, शोंगन विज गसी पढ़ुन। बहरहाल नमाज के बारे में मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। ठीक है, अक्सर लुक यम साथ ये कारण नमाज जब अदा करते हैं फिर हम क्या करते हैं? आयतुल कुर्सी पढ़। बहरहाल नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की बहुत ज्यादा ताकीद हदीस में आई है। सो हदीस थी बोल में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि जो शख्स नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करे उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ किसका फासला है? मौत का। यानी इधर मौत आई उधर वो जन्नत में दाखिल हो गया। अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ है उलमा का कि ये गैसा सूती ये पढ़ना फर्ज नमाज पत या ये सुन्नतों के बाद पढ़ी जाए। तो क्या फर्ज पची क्या सुन्नत थे। बहरहाल असक्का रिवायात जो हैं या यमजन मुस्तनद रिवायात उनमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात फर्ज के बाद है वो सिर्फ ये है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यानी रिवायात यमजन पुख्त रिवायात और मजबूत रिवायात हैं। उनमें फर्ज नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा इस्तिगफार करते थे और फिर पढ़ते थे अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या रब्बना तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। तो ये दुआ पढ़ते थे। और हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक और रिवायत है रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। और एक और सहाबी से एक और हदीस है अल्लाहुम्मा ला मानिय लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनात वला यंफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। बस इतनी देर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बाद कयाम करते थे और फिर चले जाते थे अपने घर क्या करने के लिए? सुन्नतें अदा करने के लिए। और याद गश थाउन सुन्नत भी नवाफिल अदा करनुक सारे खुद बेहतरीन जगह सुकुश वो इंसान के वो अल्लाह ये वो अपना घर है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हदीस में कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। यानी जिस तरह कब्रिस्तान में नमाजें नहीं होती है उसी तरह अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्या? क्योंकि उनसे नमाजों से घरों में बरकत आती है और खवातीन की और ये बच्चे उनकी तरबियत होती है। इसलिए आओ रसूलुल्लाह के हदीस में तलकीन कर्मस की नमाज गसन सुन्नत यम नवाफिल कतिन पढ़न घरन में। अलबत्ता आज के दौर में उलमा ने इजाजत दी है क्योंकि गफलत का दौर है और इंसान दीनुक इसकी वक़्त दिन ब दिन दिलों में कम हो रही है। तो उलमा ने इजाजत दी है कि आज मस्जिदों में भी सुन्नतें अदा कर सकते हैं क्योंकि अगर नबर द्रा इंसान चूंकि गाफिल इंसान गमित अब उतनी अहमियत नहीं है दीन की। ये लगे अत कथन से ये कारोबार में लग जाएगा, ये गए बागस कुछ अमिस गए सुन्नत मिस अमिस गए नवाफिल मिस। तो इस लिहाज से मजबूरी के तहत उलमा ने सुन्नतें और नवाफिल कहाँ पर पढ़ने की इजाजत दी है? मस्जिद में इजाजत दे। वरना अफजल तरीन अमल यह है कि सुन्नतें और नवाफिल मिसल का दिन पढ़ना गैर पढ़ना। अच्छा दयम का अब मैं आपसे कह रहा था कि हदीस आमद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बाद बस इतने बाकायदा रुकते थे। यानी यम क्या कलिमात मख्तसर अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लाहुम्मा अंतस सलाम और ज्यादा से ज्यादा रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्नी और इसके बाद उठते थे। अवै उलमाहन में आत्मज इख्तिलाफ कि अक्सर उलमा और जो हमारे मुतकद्दिमीन के जो हमारे असलाफ पहले जमाने के उलमा वो इसी बात पर अमल करते थे। वो फर्ज नमाज के बाद फौरन उठ जाते थे और किनका एहतमाम करते थे? सुन्नतों और नवाफिल का। अलबत्ता कुछ उलमा की राय है कि यमजन मसनून अज़कार नमाज बच चाहे आयतुल कुर्सी हो चाहे सुबहान अल्लाह 33 मरतबा या 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये भी पढ़ने चाहिए इसके बाद। मगर बहरहाल ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत रवायत वो ये है कि इन अमाल को सुन्नतों के बाद किया जाए। यानी शाम नमाज पर क्या शेष करन सुन्नत पढ़ेंगे फिर सुन्नतों के बाद शाम के अज़कार और फर्ज के अज़कार और आयतुल कुर्सी ज्यादा बेहतर असल में ये तरीका है। और अगर आप बाहर जाओगे कशीर त्रयत कश्मीर से बाहर निकलोगे आप खुसूसन अरब दुनिया में अगर आप जाओगे वहां यही मामूलात है कि फर्ज नमाज पढ़ी जाती है बस 1 मिनट या 1.5 मिनट का वक्फा फिर सुन्नतों के बाद वो अज़कार करते हैं क्योंकि सुन्नत से असल में यही तरीका ज्यादा साबित है। इसी से ये बात भी निकलती है ये मुरवजा इज्तिमाई दुआश
मिसाल के तौर पर जीट दुआ कर कुस मौलवी साहब पच पकी हम कर आमीन। इसका भी किसी पुख्ता हदीस में या किसी सिक्का रिवायत में इसकी ज्यादा सराहत आमद हदीस मज, बल्कि इसका सबूत कहीं पुख्ता हदीस से नहीं मिलता है। अलबत्ता नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद दुआ की कबूलियत के बारे में रसूल ने इंतहाई ताकीद की है। यानी यम सात दुआ कबूलियत तमो मुझ सात कस यजन फर्ज नमाज पत, मगर इससे ये लाजिम नहीं आता है कि ये दुआ इज्तिमाई हो, बल्कि असल में तो हाजात इंसान और बंदे के अलग अलग होते हैं। बंदा अपने हाजात अल्लाह के सामने इनफरादी तौर पर पेश करे, वो ज्यादा बेहतर है इसके मुनासिब कि मौलवी साहब कर आम ये अत दुआ अड़ निंद्र तन अड़ कर वो आमीन करते हैं। ये असल में दुआ का सही तरीका नहीं है। बहरहाल यम इल्मी नुक्त जो जिनका ताल्लुक किनके साथ था, आयतुल कुर्सी के साथ। अब एक आयत की आज तशरीह हो जाएगी तिकाज वक्त कम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला इक्राहा फिद्दीन। बहरहाल लफ्जी तर्जुमा ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। बहरहाल क्या जबरदस्ती नहीं है? बहरहाल आयतुल कुर्सी में हमने अल्लाह के बारे में जो अकायद रखने चाहिए उनका तफसीली जिक्र आ गया कि अकिस मुसलमानस क्या अकीद गस आसन केमिस मुतलिक, रब्बुल आलमीनस मुतलिक कि सह हसा अल हई, सह हसा अल क़य्यूम, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, उसको न कभी ऊँग आती है न कभी उसको नींद आती है, हर शय दुनिया की वो उसकी मिल्क है। बहरहाल ये सारे अकायद जो मुसलमान को या एक इंसान को अल्लाह के बारे में होने चाहिए, उनका तफसीली जिक्र किस में आया? आयतुल कुर्सी में। अब यमिस इंसान सुन यह अकीदा आयस खुदायस मुतलिक, बताओ उसकी जिंदगी और एक काफिर की जिंदगी क्या उनमें कोई डिफरेंस होगा? जमीन आसमान फर्क। एक काफिर वो समझता है कि नौज बिल्लाह मिन जालिक मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मगर मुसलमान सुन अकीद अल्लाह हर आन मुझे देखता है, क्योंकि न तो उसको ऊँग आती है न तो उसको नींद आती है। काफिर सुन अकीद मैं मर जाऊंगा मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मुसलमान का अकीदा है कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि दुनिया और आसमान की हर चीज उसकी मिल्क है, तो मालिक को ये इख्तियार है कि वो अपने आका या अपने गुलाम से हर अमल के बारे में सवाल करे। तो इससे पता चलता है जो इंसान अल्लाह के बारे में ये अकायद रखे जो आयतुल कुर्सी में बयान किए गए हैं, उसकी जिंदगी और एक काफिर या न मानने वाले की जिंदगी, इनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। जो इन अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेगा उसे हम मुसलमान कहते हैं। युस्लिम अकायदों मुताबिक पानी जिंदगी बसर करके उसको हम क्या कहेंगे? काफिर। अब मुसलमान या मानने वाले का जो जिंदगी गुजारने का तरीका है उसे इस्लाम कहते हैं। युस हमसन तरीक उसे तो हम कहेंगे कि ये कुफर की रविश या कुफर का तरीका इख्तियार किए हुए है। तो इस तरीके को इख्तियार करना यानी इन अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी संवारना, अपनी जिंदगी बसर करना या इस्लाम के ताबे अपनी जिंदगी बनाना, इसके बारे में अल्लाह ने कहा इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। कोई इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी इन अकायद के मुताबिक बनाए, कोई इंसान चाहे वो अल्लाह की इन सिफात का इनकार करे और अपनी जिंदगी किसी दूसरी डगर पर ले जाए, उसको भी इख्तियार है। इस मामले में अल्लाह तबारक व तआला उसे जोर जबरदस्ती करके इन अकायद को मानने पर मजबूर नहीं करेगा। यह माना ला इक्राहा फिद्दीन, यानी दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में या इन अकायद के बारे में जो अल्लाह के बारे में एक इंसान को होने चाहिए और फिर इनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना, इनके बारे में इंसान पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने सिफात, अपने ये मुसलमानों की जो अकायद होने चाहिए वो बयान कर दिए। अब इंसान की मर्जी है कि वो इन अकायद के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करे या न करे। तो अल्लाह कहता है ला इक्राहा फिद्दीन, तो इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती इंसानों पर नहीं है। अलबत्ता एक बात याद रखिए, इस आयत का अक्सर तर्जमा गलत लिया जाता है। अक्सर लोग खास तौर पर जो आजकल पढ़े लिखे दानिश्वर अपने आप को कहते हैं, वो इस आयत का गलत तर्जमा लेते हैं। तुम वन ओ बच्ची नमाज पढ़ो, तुम ला इक्राहा फिद्दीन, दीनस में जबरदस्ती क्या। उनसे कहा जाता है कि आप वरासत की तकसीम शरीयत के मुताबिक कीजिए, दबन ला इक्राहा फिद्दीन, दीनस में जबरदस्ती क्या। मगर याद रखिए ये असल में दीन के कबूल करने के बारे में कहा जा रहा है, दीन को इख्तियार करने के बारे में कहा जा रहा है। यानी
अल्लाह तबारक व तआला से फरमान वहदैनाहुन नजदैन, मैंने आपको दो रास्ते आपके सामने रखे, एक इस्लाम का रास्ता है, एक कुफर का रास्ता है। आपको खुली आजादी है, आपको इख्तियार दिया गया है कि आप हिदायत का रास्ता इख्तियार करें या गुमराही का रास्ता इख्तियार करें। यहाँ आपको इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, न तो आपको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए डंडे के जोर से आपको इस्लाम कबूल कराया जाएगा। अलबत्ता जो एक बार इस्लाम में दाखिल हो गया, युस्मा अकरट इस्लाम में दाखिल गो, बहरहाल उसको इस्लाम के कवानीन, इस्लाम के जो उसूल हैं उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करनी होगी। और अगर इस्लामी हुकूमत होगी तो इस्लामी सरबरा उसे इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करने पर मजबूर करेगा। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल एक आलिम ने बहुत अच्छी दी है। सुजदफन ये ऐसी ही मिसाल है कि एक लड़का है, उसे पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला लेना है, तमिश दाखिल कर दिन स्कूल, मगर सोसाइटी में या एक शहर में बहुत सारे स्कूल होते हैं, वारिया ऑप्शन, ये उस स्कूल में जाए, दूसरे स्कूल में जाए, तीसरे में जाए, ये इसकी मर्जी है। अलबत्ता एडवर्टीजमेंट सभी करते हैं कि हमारे यहाँ आला तालीम है, हमारे यहाँ ये सहूलियात, ये फैसिलिटीज। अब जिनसे ये ज्यादा मरगूब हो जाएगा या यतन ज्यादा पन पान फिट बस, ये उसी स्कूल में दाखिला लेगा। मगर इस दाखिले के बारे में स्कूल इस पर कोई जरा या कोई जबर नहीं करेगा। ए स्कूल, बी स्कूल, सी स्कूल, डी स्कूल, सारे दिस पन पन फीचर्स कर ब्रोट पेश, चाहे एडवर्टीजमेंट के जरिए, चाहे ये वहां गया और वहां देखा। तो बिल्कुल यही मिसाल इस्लाम की है। इस्लाम अपने दलाइल रखेगा इंसान के सामने कि ये इस्लाम की हकानियत है, ये इस्लाम के उसूल हैं, तिजारत के ये उसूल, सियासत के ये उसूल, इनफरादी जिंदगी के ये उसूल, आइली जिंदगी के ये उसूल, इज्तिमाई जिंदगी के ये उसूल। अगर आपको ये उसूल पसंद आते हैं, आप इन पर गौर व फिक्र कीजिए, अगर चाहे मन मुआफिक बासन छी आप कबूल कीजिए इसको। बहरहाल दलाइल की हद तक इस्लाम इसके सामने क्या रखेगा, दलाइल। मगर जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल इसको बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो स्कूल वाले जबरदस्ती नहीं करते हैं, इसको जबरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं यतन यतन मुसलमानों हुक्मरानी कर, उन्होंने इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, मगर इस्लाम जबरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल नहीं किया। अगर ये बात होती, मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर, अगर पन्ने मुल्क की बात करो, मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर कई सौ साल तक हुकूमत की, अगर ये बात होती कि जबरदस्ती इस्लाम कायल होता इस्लाम में दाखिल करने का, तेल ऐसे सोरे हिंदुस्तान आज कुछ मुल्क, ये तो तमाम मुसलमान होते। मगर सूरत हाल इसके बरअक्स है। ये इस बात की गवाही है कि मुसलमान जबरदस्ती किसी दूसरे को मुसलमान बनाने का कायल नहीं, और इस्लाम इसकी तालीम ही नहीं देता है। इसके बरअक्स अगर आप अंदलुस को देखोगे, अंदलुस एक वक्त मुसलमान दारुल खिलाफा, यानी वो बिल्कुल मुसलमान आबादी और मुसलमानों की एक अजीम तारीख अंदलुस में है। लेकिन जब ईसाइयों ने और यहूदियों ने और यमजन सिलेबी फौजें वहां पर जब काबिज हो गई, उन्होंने जबरदस्ती मुसलमानों को क्या ईसाइयत और यहूदियत कबूल करने के लिए मजबूर किया। आज हम देखते हैं अंदलुस क्या स्पेन, वो तो आज मगरबी ममालिक में से सबसे एडवांस्ड मुल्क और फहाशी में और यजन इस्लाम दुश्मनी में सारखत। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुसलमान या इस्लाम ये लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में लाने के कायल। हाँ, इस्लाम अपनी दलाइल रखेगा, इस्लाम था पानी हक़ानियत लोगन ब्रोट के, जिसको कबूल करना है वो कबूल करे। तो यही कहा जाता है ला इकराह फिद्दीन। अलबत्ता जब एक बार स्कूल में एडमिशन हो गया या एक बार जब इस्लाम में दाखिल हो गए, अब आपको स्कूल के लॉज फॉलो करने होंगे। जो वहां पर डिसिप्लिन का तरीका है, टाइम यूनुक, टाइम नेरनुक, रिसेस ब्रेक, इसी तरह वहां के यूनिफॉर्म, वहां के कवानीन, वो तमाम इस लड़के को अब फॉलो करने होंगे, क्योंकि अब ये किसका ताबे बन गया, अब ये उस स्कूल के ताबे, उन कवानीन का ताबे बन गए। यही मिसाल एक इंसान की है कि जब उसने एडमिशन लिया किसमें, इस्लाम में, जब ये दाखिल हो गया इस्लाम में, अब इसको इस्लाम के कवानीन फॉलो करने होंगे। अब ये नहीं कहेगा कि इससे कहा जाएगा नमाज पढ़ो, इवन ला इकराह फिद्दीन, इससे कहा जाएगा ज़कात दे दो, इवन ला इकराह फिद्दीन। अब इसमें जबरदस्ती, या आमतौर पर आजकल की मॉडर्न लड़कियों, उनसे कहा जाता है कि पर्दे का एहतमाम करो, वो वापस जवाब देते हैं ला इकराह दीन में जोर जबरदस्ती। मगर ये उज़्र अब नहीं चलने वाला, क्योंकि अब ये दाखिल किस में हो गए हैं, इस्लाम में। अब इस्लाम के कवानीन के मुताबिक इनको जिंदगी बसर करनी। अब इस्लाम में हमने पीछे भी पढ़ा है कि मुर्तद की सजा क्या है, उसको कत्ल किया जाएगा अगर इस्लामी हुक्म है। क्यों?
हालांकि इस्लाम लाने के बारे में तो कोई जोर जबरदस्त नहीं, ये इस वजह से है क्योंकि वो इस्लाम का कलादा एक बार, इस्लाम का फट्टा उसने अपने गले में बांध दिया। अब इस्लाम के कवानीन उस पर नाफिज होंगे, अगर ये नाफिज ना होंगे तब तो इस्लाम एक खेल बन जाएगा, ये तो सिर्फ एक रस्म रह जाएगी इस्लाम में दाखिल होना, बाकी इस्लामी कवानीन ये तेरे अपनाना। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के कबूल करने में, दीन को इख्तियार करने के बारे में कोई जोर जबरदस्ती। लेकिन रहा ये सवाल कि एक इंसान इस्लाम में दाखिल हो गया, अब इसको इस्लाम के कवानीन को फॉलो करना होगा। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई। अब क्या हो गया? क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, जो रुश्द है, रुश्द माने हिदायत, हिदायत रोशन है किससे? गुमराही। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमान हिदायत और ये हिदायत और गुमराही ये बिल्कुल वाज़ेह है, ये अलग अलग है। गुमराही का रास्ता भी अलग और रुश्द जो है या जो ये है हिदायत का रास्ता, ये अल्लाह ने वाज़ेह और बायन करके दिए हैं। इंसान की अपनी मर्जी, वो रुश्द के रास्ते पर चले या वो ज़लालत और गुमराही के रास्ते पर चले। आकर दईम का अल्लाह ताला फरमाता ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, गुमराही और ज़लालत और हिदायत ये बिल्कुल वाज़ेह वाज़ेह हैं, ये बिल्कुल अलग अलग हैं। अब इंसान का अपना इख्तियार है कि वो गुमराही को इख्तियार करे या वो किसको इख्तियार करे? ये हिदायत को इख्तियार कर। इस मामले में इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अलबत्ता यहाँ पर एक गलत फहमी का ये इजाला मैं कर दूं, अगर इंसान में शक, फिर जहाद का क्या मकसद है? यानी इस्लामी जहाद या इस्लामी क़िताल यज़न करने ये इसका मकसद क्या है? याद थजतई इस्लामी क़िताल या इस्लामी जहाद यज़न ये रुकबे को या ये इस्लामी रुकबे को बढ़ाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ जमीन फतह करने खातिर जहाद आमद करने या क़िताल करने के, बल्कि असल में इस्लाम का जो मकसद है वो ये है कि इस्लाम रोज मगलूब किया, इस्लाम के जो कवानीन है ये मगलूब होकर फिर अपनाए नहीं जाएंगे। इसीलिए जहां पर भी सहाबा गए, जहां पर भी रसूलुल्लाह ने अपने दस्ते भेजे इस पैगाम के साथ कि वहां किसी पादरी को नहीं छेड़ा जाएगा, कौन खातून ही नहीं छेड़ने के, वो इंसान जो आपके मुकाबले में नहीं आएगा उसके साथ भी छेड़खानी नहीं होगी। और ये सातन तहत इस्लामी हुकूमत कायम गई। ये गवाह है, तारीख सीरत की किताबें आप खोल कर देखिए, किसी गिरजे को, किसी मंदिर को, किसी या बुतखाने को बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं की गई। हत्ता कि लोगों को इस बात पर मजबूर भी नहीं किया गया कि आप अपने दीन से फिर जाओ। अलबत्ता मामूली एक जिज़िये की रकम के बदले उनको तहफ़्फ़ुज़ अता किया गया। तो ये वन कि ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में, दीन के कबूल करने के मामले में इंसानों पर कोई जबरदस्ती नहीं है। और क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, गुमराही और हिदायत ये अल्लाह ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिए हैं। इंसान का अपना ये इख्तियार है कि वो चाहे हिदायत को या गुमराही को इख्तियार करे। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, बस जो कोई तागूत का इनकार करे व युमिन बिल्लाह और अल्लाह पर ईमान लाए, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने एक मजबूत सहारे को थाम लिया। लन फिसाम लहा, और वो सहारा जिसको उसने थाम लिया वो कभी भी कमजोर या कभी भी वो नहीं टूटेगा। वल्लाहु समीउन अलीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला समी सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। बहरहाल तागूत क्या गो और ईमान किसे कहते हैं ये बहुत वसी बहस है। इंशाअल्लाह रहमान पागा अगर जिंदगानी रोज कल हम तागूत की यहाँ पर तफसील करेंगे और देखेंगे कि मौजूदा जमाने में तागूत की डेफिनेशन और आज का सबसे बड़ा तागूत कौन है। रब्बुल आलमीन से दुआ कि सीधी इसमें आयात पर अमल करने की तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।